Hello students, today we are going to read session 4 of chapter 2 Relation and Function. In this session, the topic which we are going to cover are miscellaneous exercise question. Some questions of miscellaneous exercise we are going to cover. Starting with the first question, the relation f is defined by fx equals to x square when x lie between 0 to 3 and fx is equals to 3x when x lie between 3 to 10. So fx is defined in two parts. For 0 to 3 fx is x square and from 3 to 10 fx is 3x. Similarly, a relation g is defined as gx equals to x square when x is between 0 to 2 and 3x when x is between 2 to 10. Show that f is a function and g is not a function. So starting with the fx is equals to this. Now when x is between 0 to 3 then fx is x square. So when x is 0 then x square is 0 square, so again 0. So when x is 0 y is 0. When x is 1 1 square is 1, so y is also 1. y means fx, क्योंकि fx क्या होता है y. Then when x is 2 then 2 square is 4. So when x is 2 we are getting 2 square is 4. When x is 3 then 3 square is 9. Now 3 क्योंकि यहाँ पे equal to है तो 3 यहाँ भी और यहाँ भी include है. तो if I take x equals to 3 तो 3 into 3 is 9. तो मैं दो बार नहीं लिखूँगी क्योंकि 3,9 ही आ रहा है, same ordered pair. When I take x as 4 then I am getting 12. 5 then 15. When x is 6 so 6 3s are 18. When x is 7 so 7 3s are 21. X is 8 so 8 3s are 24. X is 9 so 9 3s are 27. 10 so 10 3s are 30. In this we can see that no first element repeating its value means ये क्या होगा, फंक्शन होगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो कहीं रिपीट हो ही नहीं रहा है. 0 1 2 3 4 5 सारे क्या है, अलग ही है. पर अगर मैं gx में देखूंगी, इसलिए ये जो f है वो क्या है, फंक्शन है. अभी अगर हम gx में देखेंगे तो when x is 0 y is 0. When x is 1 so 1 square is 1. When x is 2 so 2 square is 4. 2 is included here and here also. So when I take 2 here then I am getting value as 6. 2 into 3. So अगर आगे हम देखेंगे तो 3 पे 3 3s are 9, 4 3s are 12. This all elements are written. बट हियर वी कैन सी दैट 2 की यहाँ से इमेज क्या फॉर्म हुई थी 4 और इधर से क्या इमेज फॉर्म हुई है 6. सो वी कैन सी हियर दैट 2 इज़ अ एलिमेंट हैविंग 2 इमेजेस. 2 की कितनी इमेज फॉर्म हो गई है, 2. देयरफॉर 2 की 2 इमेज फॉर्म होने के कारण g इज़ नॉट अ फंक्शन. तो ये हमको क्लियर हो गया कि f फंक्शन है एंड g इज़ नॉट अ फंक्शन. Taking another question, if fx is equals to x square, find this value. This is very easy question as fx is equals to x square. So when x is 1.1, we have to find this value. तो मैंने पहले x की जगह क्या पुट करना है 1.1. तो x को 1.1 पुट किया, so what I will get 1.1 square. Similarly मुझे एक f of 1 की भी वैल्यू चाहिए, तो I am putting in place of x I am putting 1. तो मैंने यहाँ पे भी 1 square हो गया. So now put this value in this. f 1.1 हमने वैल्यू फाइंड करी 1.1 स्क्वायर, f of 1 फाइंड करी 1 स्क्वायर और डिनोमिनेटर इज सेम 1.1 minus 1. In numerator we can easily write a square minus b square as a minus ba plus b. This 1.1 minus 1 is 0.1 and this 1.1 minus 1 is also 0.1. This get cancelled, so we are getting answer is 2.1. So this is very easy question as we have already done that if f of x is given and if we have to find value of f of 5, then in place of x what we have to write 5. Similarly in this question we have written in place of x 1.1 and 1. Moving towards the third question, find the domain of the function. डोमेन ही पूछा है, डोमेन फाइंड करना बहुत ईजी है. कौन सा फंक्शन है ये, तो फंक्शन देख के हमको समझ आएगा दैट दिस इज़ अ रैशनल फंक्शन, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं इन सेशन 3. ये रैशनल फंक्शन है. सो x² - 8x + 12
कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या बोला है कि रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर कैन नेवर बी ज़ीरो. So x square minus 8x plus 12 cannot be 0. It means solving this quadratic equation using factorization, middle term split कर दिया, minus 6x minus 2x, x common लिया, so x minus 6 minus 2 common, x minus 6. So x cannot be 6 and 2. So x can take all values except 6 and 2. So domain is real number minus 6 comma 2. तो rational function में it is very easy to find the domain कि denominator can never be 0. जिस x की वैल्यू के लिए denominator 0 आ रहा है, remove that value from the domain. Question 5th. Question 4th I had already covered in session 3. So question 5th, find the domain and range of the real function of the function fx equals to mod x minus 1. हमने देखा है कि मॉड फंक्शन कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की कोई भी वैल्यू लेंगे उसके लिए हमको एफ एक्स की वैल्यू मिलनी ही है, इसलिए एक्स कैन टेक ऑल वैल्यू, एक्स इज़ रियल नंबर. सो मॉड फंक्शन में हमेशा एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो डोमेन विल बी रियल नंबर. नाउ एज मॉड्यूलस वी नो दैट मॉड फंक्शन हमेशा सिर्फ कैसी वैल्यू लेता है, पॉजिटिव वैल्यूज़. So mod x minus 1 lie between 0 to infinity. So range is 0 to infinity. यहाँ हम कुछ प्रूव नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली लेंगे, क्योंकि हमने सेशन 3 में भी देखा है और हमने क्वेश्चंस ऐसे ही स्टार्ट करे थे कि मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा 0 टू इन्फिनिटी में लाई करता है, क्योंकि मॉड की डेफिनेशन ही यही थी कि मॉड x ऑलवेज लाई बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी. So this is our domain that x can take all real numbers and y is 0 to infinity. Question 4th, question 6th, question 8th, 11th and 12th. This I already covered in session 3. These are the miscellaneous questions. Now moving towards the question 7th. There are two functions given to us, fx and gx, and we have to find f plus g, f minus g, f by g. So f plus g is nothing but fx plus gx. So adding two functions, very easy. X plus 2x will become 3x. 1 minus 3 will become minus 2. F minus g is subtraction of two functions. So x plus 1 minus 2x minus 3. So x plus 1 minus 2x plus 3 minus x plus 4. F by g is again very easy. Fx by gx. So dividing 2, but denominator can never be 0. जब भी हम एफ एक्स बाई जी एक्स लिखते हैं तो देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट जी एक्स कैन नेवर बी 0. सो एक्स कैन नॉट बी 3/2, क्योंकि अगर एक्स ने वैल्यू 3/2 ली तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0. एक्स की जगह अगर हम 3/2 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर इज़ 0. इसलिए हमने एक्स को 3/2, एक्स की वैल्यू 3/2 हटा दिए. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9th. Let R be relation from n to n defined by R is equals to a comma b such that ab belongs to n and a is equals to b square. Are the following true? A comma a belongs to R for all a natural number. A comma b अगर रिलेशन में है तो वो ये इम्प्लाई कर रहा है कि b comma a भी प्रेजेंट होगा. अगर a comma b रिलेशन में प्रेजेंट है तो क्या b comma c प्रेजेंट है, अगर a कॉमा बी रिलेशन में है और b कॉमा सी है तो क्या a कॉमा सी रिलेशन में प्रेजेंट होगा. तो हमको ये स्टेटमेंट्स को चेक करना है ट्रू और फॉल्स. a कॉमा a का यहाँ क्या मीनिंग है, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है वही सेकंड वैल्यू होनी चाहिए. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. R is equals to a comma b, ab belongs to n and a is equals to b square. This is given to us. अब क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करना है कि क्या a सभी नेचुरल नंबर के लिए a कॉमा a रिलेशन में प्रेजेंट होगा. तो आई एम टेकिंग लेट 2 बिलोंग्स टू, आई नो दैट 2 इज़ अ नेचुरल नंबर, सो आई एम टेकिंग a इज़ 2. जब a 2 होगा तो 2 इज़ इक्वल्स टू, क्या 2 स्क्वायर पॉसिबल है, नहीं है. इसका मतलब a कॉमा a प्रेजेंट नहीं है. क्यों, क्योंकि अगर मैंने a2 लिया तो क्या होना चाहिए था, 2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, विच इज़ नॉट पॉसिबल.
इसलिए a कॉमा a रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, तो जो a की वैल्यू है वही b की वैल्यू नहीं हो सकती है। सेकंड, अगर a कॉमा b प्रेजेंट है तो क्या b कॉमा a प्रेजेंट होगा? सेकंड, a कॉमा b अगर रिलेशन में है तो क्या b कॉमा a भी रिलेशन में होगा? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 9,3 प्रेजेंट इन द रिलेशन। क्यों? क्योंकि when a is 9 then b is 3, क्योंकि a को अगर मैंने 9 पुट किया तो b is 3, so 3 square is 9, so 9 is equals to 9। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 9,3 इज इन रिलेशन बिकॉज 9 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। फर्स्ट लेटर कौन है? a, सेकंड कौन है? b। तो अगर a कॉमा b प्रेजेंट है तो क्या b कॉमा a प्रेजेंट होगा? नहीं। ये वैल्यू अब किसकी हो गई है? a की, और ये b के। तो 3 इक्वल्स टू 9 स्क्वायर मतलब 81। क्या 3 इक्वल्स टू 81 पॉसिबल है? नहीं है। सो इट इज़ क्लियर दैट a कॉमा b तो रिलेशन में प्रेजेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि b कॉमा है, मतलब 9,3 तो रिलेशन में प्रेजेंट है बिकॉज 9 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, बट 3 इज नॉट इक्वल्स टू 9 स्क्वायर। सिमिलरली इफ a कॉमा b प्रेजेंट है, b कॉमा c प्रेजेंट है, तो क्या a कॉमा c प्रेजेंट होगा? लेट्स टेक एग्जाम्पल, इफ 16,4 बिलोंग्स टू R, क्योंकि 16 इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, ये a होगा और ये b होगा, तो a इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। एंड 4,2 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन रिलेशन बिकॉज a इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अगेन। दिस इज a एंड दिस इज b। तो a कॉमा b प्रेजेंट है और जो b है वो यहाँ b कॉमा c प्रेजेंट है, तो क्या a कॉमा c प्रेजेंट होगा? मतलब क्या 16,2 रिलेशन में होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 16 इज नॉट इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। तो दिस स्टेटमेंट इम्प्लाइज दैट a कॉमा b और b कॉमा c अगर रिलेशन में है तो इट डज नॉट मीन दैट a कॉमा c होगा, इसलिए दिस इज नॉट ट्रू। Moving towards the next question, question 10th, let a is equals to this and b equals to this. A function is defined to us, f is given to us. हमको check करना है whether this is a relation or a function. So f is given this is set a and this is set b. अब यहाँ से हमको ये चेक करना है क्या ये रिलेशन है। हमने क्या पढ़ा था? रिलेशंस क्या है? रिलेशंस आर द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर मेरे पास सेट ए और सेट बी है तो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी लिख सकती हूँ बहुत इजीली। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग था 1 सभी एलिमेंट से रिलेट होगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखना चाहती हूँ तो मैं 1 को 1 से, 1 को 5 से, 1 को 9 से, 1 को 11 से, 1 को 15 से और 1 को 16 से सभी से रिलेट करूँगी। सिमिलरली 2 को भी 1 से, 2 को 5 से, 2 को 9 से सभी से रिलेट करूँगी, 3 को भी और 4 को भी। ये जो मैंने लिखा है, ये जो रिलेशन डिफाइन किया है कि 1 एरो डायग्राम से, 1 5 से, 2 9 से, 2 11 से, 3 1 से और 4 5 से, ये क्वेश्चन में गिवन है। फंक्शन इज डिफाइंड, एफ इज डिफाइंड अस लाइक दिस। अब हमको चेक करना है कि ये जो डिफाइन किया है ये रिलेशन है या नहीं। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने देखा था। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये सारे आ रहे हैं 1,5, 2,9, 2,11, 3,1, 4,5। मतलब दिस एफ इज सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब दिस इज अ रिलेशन। एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एज इट इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। एफ इज नॉट अ फंक्शन। Why? Here we can see that the element 2 have 2 images 9 and 11, so it is not a function. So in this way we had covered chapter 2 relation and function. In session 1 we read Cartesian product and relation. In session 2 we read definition of function and types of functions. In session 3 we learned how to find the domain and range of function, which is very important topic. And in session 4 we had covered the miscellaneous question. So some miscellaneous questions are in session 3 and some are in session 4. Thank you.